Hey, hi guys, good evening. Let's continue where we stopped if, in the morning. See, we started discussing about optical isomers, right? And any stereoisomers which have optical behavior towards plane polarized light are called optical isomers, which means if they can rotate the plane polarized light, we say they are optically active or they have optical isomers. Okay. Next, these optical isomers can be in the form of an enantiomers or they could be different in magnitude of angles. That means they could be diastereomers as well. See, first, how do we need to check out? Optical isomers are of two kinds. First, either they are optically active, which means they will rotate the plane polarized light, or they are optically inactive, which means they do not rotate the plane polarized light. When I say optically active, they will rotate the plane polarized light either in clockwise or anti-clockwise. And like I said, if they rotate clockwise, we give them a sign of plus or D and and we say this is undergoing dextrorotation. And in case if it is going anti-clockwise, we assign it as negative and L, which means it is levorotatory. So if this is how the polarimeter angle is being found, which means we say the solution is dextrorotation. If this is how the angle is found, we say it is levorotation. By the way, D and L are only experimental values. We cannot judge anything theoretically. Okay. When do we say something is optically inactive? Well, they do not rotate plane polarized light, but they can be considered as optical isomers if it's any of the stereoisomer is optically active. For सर आई instance, हैव अ डाउट हाँ बेटा, सर बेस्ड ऑन कंपाउंड हम लोग बोल सकते हैं डेक्स्ट्रो होगा या लिवो होगा अगर सिंगल कायरल है तो ही बोल सकते हैं, अगर मल्टी कायरल है तो नहीं बोल सकते। ओके अगर सिंगल कायरल है, ठीक है, तो जो भी हम लोग को आर कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो डेक्स्ट्रो होगा। और क्या आर और एस कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो अभी हम लोग पढ़ने वाले ओके 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 हैं। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं बेटा, हम लोग हमेशा नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात आ जाती है। टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या, इसका मतलब हमेशा ही प्लेन ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए या ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। सो आंसर इज बोथ। एक्चुअली ऑप्टिकली एक्टिव भी होना चाहिए या ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं। वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज इफ देर इज एन ऑप्टिकल इनएक्टिव सेंटर, फॉर इंस्टेंस mesoforms होते हैं, they do not rotate the plane polarized light, okay, but if there any of the stereoisomer is optically active, हम लोग उनको भी consider करेंगे to be optically active. See here, if you see this molecule, it has two chiral centers. ध्यान से देखिए, ये भी chiral center है, ये भी chiral center है, but because it has a plane of symmetry passing through this, this is called as mesoform, right? We call it as mesoform or mesomer. और इसका मिरर इमेज लेंगे तो ये मिलेगा और दोनों सुपर इम्पोजेबल है। सो 1 and 2 आर सुपर इम्पोजेबल एंड मेसोफॉर्म्स। वाइल इसका एक स्टीरियो आइसोमर लेते हैं, मतलब इसको ऐसे घुमाते हैं। सो इफ यू चेक इट आउट, इफ OH इज ऑन द अदर साइड एंड H इज ऑन दिस साइड, देन this is the stereoisomer of this meso, any of these two, and these two are enantiomers of each other, क्योंकि यहाँ पे ना कोई plane of symmetry है ना कोई center of symmetry है। So which means 3 and 4 are enantiomers, which we call it as stereo, which are the part of stereoisomers only, while 1 and 3 are stereoisomers, while 1 and 2 are identical because they are mesoforms. So इन दोनों को हम लोग एक मॉलिक्यूल की तरह कंसिडर करेंगे और ये एक डिफरेंट मॉलिक्यूल है, ये एक डिफरेंट मॉलिक्यूल है। So if the question is asked about how many total number of optical isomers, answer is not 2 just because there are only 2 optical active. This is also one of the answers. So total 3 optical isomers, out of which 2 are optically active and 1 is optically inactive. I guess this point is clear to everyone.
Right. That brings to the idea that how do we calculate the chiral centers, and from their chiral centers, how do we calculate number of optical isomers? See, any center which has sp3 hybridized carbon or other atoms having four different groups, right? That includes lone pair also as a different valency group. Then we say they are chiral centers. For example, carbon with these four different groups, we say it has one chiral center. This is nitrogen with four different groups: hydrogen, deuterium, methyl, and ethyl. So this is one chiral center. See sulfur. Sulfur with four different groups. You know, phenyl, we have methyl, double bonded O, and this O, suppose if this is 16 and this O is 18. So isotopically, both of them are different. So then also we consider it as a chiral center. So this sulfur is having four different groups and it is a chiral center. Here, POCH3 and a lone pair. Even if there is a lone pair, it is sp3 hybridized and we consider it as a chiral center. See this carbon, from this end, the group is CH2, CH2 and CH. From this end, if you go CH, C double bond O CH, which means there is a difference in the group from left when you go from left and when you come from right. So there are four different groups on this carbon. Same is the case with this carbon. There are four different groups on this carbon. This is the molecular structure of camphor. So camphor has two chiral centers. Okay. So just as an objective question, you might come across that. So remember, camphor has two chiral centers. Yes. Adamantane. Adamantane is a molecule which is, you know, this way, three-dimensional hoga. Imagine chair form. This is six-membered ring, which is cyclohexane. On that, one of the carbon is connected this way, and from here, one more carbon is connected here. Like this, if you check out this 1, 2, 3, 4, all these four are different chiral centers. Okay, twistane. Twistane is some kind of a molecule like this, where when they connect these four, 1, 2, 3, 4, all four will appear like a different chiral centers. Next, this molecule, nitrogen, having one lone pair, ethyl, hydrogen, methyl, बट दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसमें रिंग फ्लिपिंग होगा, क्योंकि इसमें बॉन्ड फ्लिपिंग होगा. ये लोन पेयर ऊपर नीचे फ्लिप करते रहेगा. इसका सॉल्यूशन कभी सिंगल सॉल्यूशन की तरह नहीं मिलेगा. विल ऑलवेज हैव अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन हियर. ओके, सो हियर optical inactivity is for some different reason. Okay, but yes, there is an existence of chiral center. Clear? And why that has happened, I already put it here. So we can see these lone pairs will repel each other. A transition state will come where this nitrogen becomes sp2. So from this side it will change to this side, which means dextro rotation से levo rotatory बन जाएगा. और ये ऐसे होगा over the time. This will become 50% and this will become 50%. This will become 50 and 50%. Clear? So this way it would exist in 50%, this way it will exist in 50% in the So does solution. this mean it will dissolve 50% only? Come again? Does this mean it will dissolve 50% only? No, this is the pure form. ऐसे सोचो ना, आपने इसका 100% लिया, ठीक है? इमेजिन करो आपने इसका 100%, मतलब प्योर फॉर्म लिया, इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ यही था. बट ओवर द टाइम वो खुद ही इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. Okay. क्योंकि ये आपस में रिपेल करके इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन स्टेट पे तो आ जाएंगे. तो यहाँ से वो Yes, इधर sir, भी जा got it. सकता है, वो या तो इधर भी जा सकता है, राइट? सो वो इधर भी 50% बन जाएगा, इधर भी 50% बन जाएगा. तो आप ये वाला प्योर लो या ये वाला प्योर लो, विद इन नो टाइम दोनों फिर से 50-50% बन जाएंगे. समझा बेटा? Yes, sir. सो दैट वे वी कैन से दैट दोनों 50-50% रहेंगे. मतलब क्या है, इसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर. रेसिमिक मिक्सचर मीन्स अ मिक्सचर वेयर 50% ऑफ one dextro rotatory solution is present and levo rotatory solution is present. Okay, so overall reading पे ना कुछ भी नहीं आएगा, angle का reading कुछ नहीं आएगा. That is called racemic mixture. So it exists like a racemic mixture always. Okay, now see number of compounds among the following that are optically inactive. ये nitrogen based question JEE में आया था, so that I have
try to pick out ones. See, नाइट्रोजन है, राइट? ऑप्टिकली इनएक्टिव चेक करना है। यहाँ पे देखो 1 2 3 ऑल ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट कनेक्टेड विथ ईच अदर। मतलब ये रिंग फ्लिपिंग हो सकता है, ऊपर सॉरी, विच मीन्स ये लोन पेयर ऊपर नीचे फ्लिप हो सकता है। सो ये प्लस और माइनस में एग्जिस्ट करेगा, मतलब दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पे देखना कार्बन विथ 4 ग्रुप्स, कार्बन विथ 4 ग्रुप्स कैसे, एक लोन पेयर है और 3 डिफरेंट ग्रुप्स है, तो ये लोन पेयर भी ऊपर नीचे फ्लिप करेगा, मतलब दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। check here, if you check out here, this is equatorial, this is in the axial position, this is in the equatorial position, these two are cis to each other. Okay, when you have cis to each other, ये molecule कैसे होता है? When it is cis to each other, it is like this, ये ब्रोमीन ऐसे होगा, cis to each other, मतलब ये दोनों के बीच में एक kind of, what do we have? We have symmetry, right? But ये cis तभी possible है, मतलब when, see, one is on the equatorial position, one is on the axial position here, correct? Now can we see any kind of symmetry in this? ये ऐसे है ना, यहाँ पर भी Br है, यहाँ पर भी Br है, so which means if one is in the axial position, the other one is in the equatorial position, because axial or equatorial is always trans, right? And equatorial axial or axial equatorial is cis. So these two are cis to each other. Okay, you know this. Not telling me these two are cis to each other. My question is whether it is optically active or inactive. If you write it as a planar molecule, ये क्या होगा? इसमें कोई सिमेट्री दिख रहा है? नहीं सर, इसमें नहीं होगा। इसमें नहीं होगा। देखो, जब कोई प्लेनार मॉलिक्यूल की तरह सोचोगे तो लगेगा कि अरे कायरल से यहाँ से तो हम लोग के पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बट व्हेन यू राइट द चेयर फॉर्म ऑफ इट, देन वी कैन डेफिनेटली से कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, सॉरी ऑप्टिकली एक भी एक्टिव। यार अंदर होता प्लेन के तो हो जाता ना। हाँ बेटा, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसको आपको किस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म में इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट ये देखना, आर्सेनिक वाला केस, आर्सेनिक विथ 3 ग्रुप्स हियर। क्लियर? सो 1 2 3, आर्सेनिक में रिंग फ्लिपिंग नहीं होगा, वेदर यू टेक आर्सेनिक, फास्फोरस, सल्फर, द रिंग सॉरी द लोन पेयर फ्लिपिंग यहाँ पे नहीं होगा। लोन पेयर फ्लिपिंग सिर्फ कार्बन, नाइट्रोजन ऐसे केसेस में ही होगा। Got it? So they are much bigger in size, so they can handle that repulsion. So therefore यहाँ पे कोई फ्लिपिंग नहीं होगा। अगर यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स है तो डेफिनेटली ये ऑप्टिकली एक्टिव है, विच मीन्स दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड नॉट ऑप्टिकली इनएक्टिव। हम लोग सिर्फ क्वेश्चन था इनएक्टिव फाइंड करने का। यहाँ पे देखो ये सल्फर है, 1 2 3 4 डिफरेंट ग्रुप्स, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, सो यस ऑप्टिकली एक्टिव, विच मीन्स इट इज नॉट ऑप्टिकली इनएक्टिव। Same way here you can see this is more or less like an alene form। ये हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के टाइम पे भी किया था। ये ग्रुप देखो, मिथाइल फिनाइल एक तरफ है, क्लोरीन हाइड्रोजन दूसरी तरफ है, ये इसमें कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो हियर देयर इज नो पीओएस, देयर इज नो सीओएस, so which means this is optically active। yeah, this is optically active, which means it is not optically inactive। बट इफ यू पुट इट दिस वे, दोनों तरफ मिथाइल है तो यहाँ से एक प्लेन पासिंग थ्रू हम लोग लिख सकते हैं, सो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट हियर इफ देयर इज 2 फ्लोरीन्स देन आल्सो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट सी दैट हियर यू हैव OH एंड OH हियर, OH एंड OH रहेगा, OH और OH दोनों डिफरेंट मतलब एक ऑपोजिट टू ईच अदर, so we cannot draw any plane of symmetry। So here also I can say there is no POS, there is no COS, which means optically active. This is optically active, so it is not optically inactive। If you have this molecule here, this will be optically inactive, so yes, this is optically inactive form। Okay, बाकी ये सब तो explanation के लिए रखा था मैंने।
right? Okay, so you just need to find out which of them are being optically inactive in all of these cases. Clear, everybody? Right. Next type of questions which are asked is chirality questions. Direct ये सब जेई क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के, कैसे कैसे पूछे गए चेक करो. Find the minimum number of carbons required to show chirality. Like for example, if you have only alkanes, सारे alkanes structures हो, so उसमें minimum कितने carbon चाहिए to show the chirality? Which means I should have first a carbon with 4 different groups. एक hydrogen रख सकता हूँ, एक methyl, ethyl, propyl. These are the minimum number of groups I have to assign. Which means how many carbons? 7 carbons. So we require minimum 7 carbons to show one chiral center which is optically active. Alkenes. Alkenes we require 6 carbons. We can manage with carbon 1 here, then methyl, ethyl, and the other side we can manage with a double bond. Alkynes also we can manage with a triple bond, which means I require 6 carbons. Alcohol एक बार OH आ गया तो मिथाइल इथाइल हाइड्रोजन इससे मैनेज हो जाएगा, which means we require minimum 4 carbons. Aldehydes we require 5 carbon, 1 CHO on one side, hydrogen, methyl, ethyl, 5 carbons. Chlorides also 4 carbons. Cycloalkanes 5 carbons. Cycloalkanes means at least one simplest of the cycle is cyclopropane. So first we'll write cyclopropane, then put two groups, two methyl groups. If you put it, they can be when they are in a trans position like this, when they are in the trans position this way, which means like this, and here this way. So this is the cis form. यहाँ पर this cannot be optically active, but if you have transform like this, then this will show optical activity because there is no POS or COS in this. So minimum 5 carbons are required in this. Clear? Next, just to throw you fast bit, just check it out how many chiral centers we have. Let's go through this fast now. See, in this case, we have one chiral center. Here we have 0 chiral center. Here we have 2 chiral centers. Here we have 2 chiral centers. Here we have 3 chiral centers, 1 chiral center. Here we have 2 chiral centers, 2 chiral centers. ये सब मैंने assignment में रखा है. I was discussing on an assignment. Check it out. Here there are 0 chiral centers because you see from this end and this end the group is same. Here also there are 0 chiral centers from this end and this end the group is same. This has 2 chiral centers. If you write it this way again it has 0 chiral centers. ये methyl methyl है, यहाँ पे methyl methyl है. This carbon, this is also isopropyl common group, so 0 chiral centers. If you have it this way, 2 methyls, if you come from this side it is different, if you come from this side it is different, so 2 chiral centers. Sulfur is present, that is also chiral center. With OH, that is also one chiral center. With nitrogen, one chiral center. With carbon, one chiral center. 1 2 3 4, these 4 are all chiral centers. सर इन द मिथाइल वन एक कायरल सेंटर होगा ना, वो सबसे लेफ्ट वाला मिथाइल का कार्बन हम लोगों ने लिया, तो वन साइड ये यू विल वाला हैव, हाँ इसमें सर द सबसे लेफ्ट वाला कार्बन व्हिच इज अटैच्ड टू मिथाइल उसमें होना चाहिए क्योंकि ये वाला हर एक्चुअल, सॉरी नहीं होगा मैं, हाँ ये समझ दोनों गया। मिथाइल ही है ना बेटा, ये भी मिथाइल है, मिथाइल. करेक्ट. अगर ऐसा रहेगा स्ट्रक्चर तो ये भी कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है, राइट. अगर ऐसा रहेगा स्ट्रक्चर तो यहाँ पे इस तरफ से जाना अलग है, इस तरफ से जाना अलग है, कायरल कायरल कायरल, सो तीनों कायरल सेंटर से. ऐसे रहेगा तो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, ये दोनों रियल है, बीच वाला सूडो कायरल है, राइट. क्लियर. सो अगर आपको सिर्फ कायरल सेंटर्स पूछा ना क्वेश्चन में, क्योंकि ये जेई में आ चुका है कि ऐसा स्ट्रक्चर दिया और बोला टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, तो सूडो को कभी कंसिडर नहीं करोगे. ठीक है, आप सिर्फ रियल को कंसिडर करोगे. सूडो का सिग्निफिकेंस आ जाता है आगे जाके जब हम लोग आरएस पढ़ेंगे तो. ठीक है.
सर से सूडो कायरल सेंटर नहीं बन सकता है ना? हाँ, सूडो ग्रुप कायरल सेंटर बन सकता है, बट उसका कुछ स्पेसिफिक केस है, तभी बन सकता है। ठीक है, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। आर और एस रहेगा तो कैसे सूडो कायरल सेंटर भी कायरल सेंटर बन सकता है। ओके सर। नो, दैट्स व्हाट मेनली वहीं पे क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सो लेट अस सी व्हाट इज अ नॉमेनक्लेचर वी यूज व्हेन यू हैव दिस कायरल सेंटर्स। We use R and S configuration, which are called the absolute configuration. And these are all based on the CIP rules which we have learned. CIP rules एक बार मैं remind कर दूं, it mainly depends upon the atomic mass and atomic number. So first we'll check out atomic number. If whatever the atomic number is highest, which is directly connected, उसको ज़्यादा priority मिलता है. And that is the reason, and that is the way we have found out all the geometrical isomers earlier. So you see R and S configuration. R as in rectus, which means clockwise. S as in sinister, which means anti-clockwise. Okay. So see, first rule number one is priority to all the valency groups. ये पहले सबको ग्रुप्स को वैलेंसीज को आप प्रायोरिटी दे देना। जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप होगा या लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा उसको पहले डैश लाइन में लेके आ जाओ। डैश लाइन में मतलब एज इफ इट इज गोइंग आउट, गोइंग इनसाइड द प्लेन। उसको उस तरह से रोटेट करो कि वो इनसाइड द प्लेन चले जाए। तो एक बार वो चला गया तो अभी 1 2 3 को चेक करना कैसे घूम रहा होगा। सो 1 2 एंड 3 ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मतलब ये एस कॉन्फिगर्ड है। सो यू कैन सी 1 2 3, सो ऐसे घूम रहा है, सो इट इज एस कॉन्फिगर। क्लियर एवरीबॉडी? राइट। सो सी फर्स्ट ऑलवेज ब्रिंग द फोर्थ ग्रुप इन द फिशर प्रोजेक्शन डाउन। ये नीचे लेके आना या एज पर वेज एंड डैश ये पीछे लेके जाना, इट इज द सेम थिंग। सो फिशर प्रोजेक्शन में वर्कआउट करना बहुत आसान है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी मॉलिक्यूल दिया पहले हम लोग उसका फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं फिशर प्रोजेक्शन का। इन फिशर प्रोजेक्शन we have to watch the molecule such a way that the horizontal groups are, always uh, towards you, and vertical groups are always away from you. So when I watch from this side, then these two, bromine and hydrogen, will be pointing towards me, and chlorine and fluorine will point away from me. So chlorine and fluorine will come on one line, that is the vertical line, and bromine and hydrogen will come on one line. So ये ऐसा है, थ्री डायमेंशनली ऐसे दिखेगा, टू डायमेंशनली हम लोग लाइन, एक सिंपली लाइन मार्किंग है। So this is a two-dimensional form, and this is what we call it as Fisher projection. Clear everybody? So अब उसके बाद हम लोग प्रायोरिटी देंगे। देखो, if you see out of these four, bromine has the highest atomic number, then chlorine, then fluorine, then hydrogen. So 1 2 3 4 ये दे दिया हमने प्रायोरिटी। ओके, हम लोगों ने प्रायोरिटी दे दिया अभी सबको। अब देखना यार, विथ रेस्पेक्ट टू दिस कायरल सेंटर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं। देखो, विथ रेस्पेक्ट टू दिस कायरल सेंटर, ब्रोमीन और क्लोरीन के बीच में डिस्टेंस x अगर है या y है, और ब्रोमीन और हाइड्रोजन के बीच में सम w है, और यहाँ पे और क्लोरीन के रेस्पेक्ट में देखना, क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में y है, x है, z है डिस्टेंस, इज इट डिफरेंट और सेम? द आंसर इज सेम, दे ऑल आर एट इक्वी डिस्टेंस। yes or no? Because this is a, when you think it in terms of three dimensional, ये एक टेट्राहेड्रल कार्बन है। टेट्राहेड्रल कार्बन के 4 ग्रुप है, और चारों ग्रुप में distance between them will be same only. Okay, so there is no change in the distance between them. Clear? 1 minute, I'll just show you how it looks like. Now look at me for once, everybody.
check. These are 4 different groups. ठीक है, this is tetrahedral in shape, correct? So when it is tetrahedral in shape, the distance between these groups will be same only, 1 to 2. ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ग्रीन और ऑरेंज के बीच में जितना डिस्टेंस है, ग्रीन और ब्लू के बीच में भी उतना ही डिस्टेंस है, और ये ग्रीन और येलो के बीच में भी उतना ही डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच में उतना ही डिस्टेंस है, सब जगह पे डिस्टेंस सेम है ना? अब इसी को मैं एक बार फिशर प्रोजेक्शन की तरह लिखता हूँ, एक बार चेक कर लो, जिसको समझता है ऑलरेडी, राइट? सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट एक बार रिवाइज हो जाएगा, चेक कर लेना। देख, यहाँ पे ऐसे 4 ग्रुप्स है, ठीक है? अब सब लोग एक बार से अच्छे से ध्यान देना, ग्रीन और येलो दोनों एक लाइन पे, मतलब एक प्लेन पे आ रहे हैं। दिस इज द प्लेन ऑन विच यू नो ये ऐसे कंप्यूटर के प्लेन पे है, green and yellow. So I'm writing this. Imagine this is green and yellow. Okay. Then if you see, this orange is going inside the plane. Orange ऐसे जा रहा है और blue बाहर की तरफ आ रहा है. So this is orange, this is blue. I think all of you are clear so far on that. Now अब मैं इसको देखूंगा कैसे? फिशर प्रोजेक्शन करना है तो कैसे देखना पड़ेगा? देखो, मैं ऐसे देखूंगा कि हॉरिजॉन्टल वाले मेरी तरफ फेस करें, तो आई विल वॉच इट दिस वे। अब ऐसे देखने में एडवांटेज क्या है? देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये मुझे फेस कर रहा है। हाउ डज इट लुक लाइक नाउ? सो ऑन दिस, देखो, ग्रीन इज अबव, ग्रीन इज अबव, राइट? ग्रीन ऊपर की तरफ है मेरे, और नीचे की तरफ येलो है, करेक्ट? एंड नेक्स्ट, ब्लू मेरे लेफ्ट में आ चुका है, सो ब्लू यहां पर है और ऑरेंज इस तरफ आया है, राइट एवरीवन? दिस इज हाउ इट इज। यहां तक किसी को दिक्कत? आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दैट। या Yes, sir. राइट। नाउ माय क्वेश्चन इज, इन दोनों के बीच में, ये सब के बीच में डिस्टेंस तो सेम ही है ना, डिस्टेंस कुछ चेंज नहीं हुआ है, ओके? और हमने ये भी सीखा है कि जब ये ग्रुप रहेगा, इसका अगर हम लोग मिरर इमेज लेंगे, इसका अगर हम लोग मिरर इमेज लेंगे यहां से, तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल बनेगा। मतलब ये ऐसा है, ऐसा जी और वाई, और इसको पीछे की तरफ ऑरेंज और सामने की तरफ ब्लू। तो व्हेन यू टेक दिस टू, we learned that this 1 and 2 are completely non-superimposable with each other. Okay, these two are non-superimposable. और इस फर्स्ट वाले का फिशर प्रोजेक्शन मैंने लिख दिया, ठीक है? अभी सेकेंड वाले का फिशर प्रोजेक्शन दिखाता हूँ। तो पहले सेकेंड वाला डाल देते हैं, बना देते हैं, फिर उसका फिशर प्रोजेक्शन दिखाता हूँ, ठीक है? सेकेंड वाला है कैसा? देखो, सेकेंड कैसा दिख रहा है? ये इस तरफ है, ग्रीन है, फिर उसके साथ में येलो है, फिर इस तरफ ऑरेंज है, ओके? इस तरफ ऑरेंज है, राइट? गॉट इट? ऑरेंज अंदर की तरफ जा रहा है और ब्लू बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसा है। दिस इज हाउ द ग्रुप इज। देखो, ये उसका मिरर इमेज बनाया अभी मैंने, ओके? ऑरेंज अंदर की तरफ है, ब्लू मेरी तरफ है, और ये दोनों एक प्लेन पे है, बोर्ड के प्लेन पे है। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी दैट, राइट? अब Or can you rotate it like a little bit? हियर सी, नाउ कैन यू सी दैट? Yes, sir. Thank you. Yeah, so this is green, beta. Then we have yellow. It is on this plane, on the plane of the board or the plane of the screen. This orange is going away from me. See it from my point of view first, okay? It is going away from me, which means it is inside the plane. This blue is coming away from me, sorry, towards me, which means coming out of the plane. That is how I have written this particular structure, okay? Now, how do I put the Fisher projection for the same? The idea of the Fisher projection is the horizontal group should always point towards me. Now, how they will point towards me? The minute I put it this way. If I put it this way, now you see this blue is pointing towards me, this orange is pointing towards me, and green and yellow are vertically on the line here. So you can see on this vertical line, we have green and yellow, and on the horizontal line, I have orange on the left hand side, blue on the right hand side.
Is all of you clear on that? Okay. Now I want you to understand directly from the Fisher projection that these two are mirror images. Correct? ऐसा नहीं कि हम लोग फिशर के ऊपर मिरर इमेज लगा रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं कि अरे ये तो सेम मिरर दिख रहा है. नॉट नेसेसरी. ठीक है. एक्चुअली थ्री डायमेंशनली ये दोनों है स्ट्रक्चर्स, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है और उसको हमने यहाँ पे लिखा है फिशर के टर्म्स में. इन द फिशर पोजिशन, see how do I make this to change into this? How do I change this part to this part? What I can do, I can put orange on the left hand side and blue on the right hand side. That's it. ऑरेंज को लेफ्ट में रखो, ब्लू को राइट में रख दो, तो ये 1 जो है 2 में बदल जाएगा, है ना. दिस इज कॉल्ड एन एक्सचेंज. ओ से बी या बी दोनों का पोजीशन मैंने एक्सचेंज कर दिया. दिस इज कॉल्ड वन एक्सचेंज और द ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस. ठीक है. Now what you will see that whenever you make an odd number of exchanges, you will always get the non-superimposable mirror images. Very important. फिशर प्रोजेक्शन में अगर हमने ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस किया है, मतलब आपको हमेशा उसका एनांशियोमर मिलेगा, मतलब उसका मिरर इमेज मिलेगा. ओके. सो फॉर इंस्टेंस लेट मी शो यू दिस सेम थिंग. GBOY. Let me call this as structure A. And now I'm changing as YGOB, structure B. Okay. Then I am changing all different ways. YGOB, and I'm changing this as YOGB, structure C, structure D. ऐसे मैं काफी सारे परम्यूटेशंस बना सकता हूँ. राइट. सो BYGO, राइट, GOYB, GOBY, all of this, correct? DEF and so on. Now I want you to check out with respect to A, with reference to A, बाकी सारे ग्रुप्स क्या हो रहे हैं. देखो फर्स्ट वाला with respect to A, how do I make this A to convert into B? See, B में कन्वर्ट करना है तो मुझे Y और ये दोनों को एक्सचेंज करना पड़ेगा एक बार. ठीक है, ताकि G नीचे आ जाए, Y ऊपर चले जाए. और O और B को एक्सचेंज करना पड़ेगा एक बार. मतलब ये दोनों के कन्वर्जन में कितने एक्सचेंजेस होने चाहिए? 2 एक्सचेंजेस. आई होप ऑल ऑफ यू एग्री विद दैट. मॉलिक्यूल A को B की तरह कन्वर्ट करने के लिए मुझे 2 एक्सचेंज करने पड़ेंगे. ओके, सेम वे. Yes, sir. राइट. A को C में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो, हम लोग को B नीचे चाहिए, Y इधर चाहिए, तो यहाँ पे एक एक्सचेंज कर सकता हूँ. यहाँ पे Y लेके आया, B इधर लेके आया, तो ये मिल जाएगा. और O को इधर लेके आया, G को इधर लेके आया, तो ये मिल जाएगा. मतलब फिर से यहाँ पे भी 2 एक्सचेंज करने पड़ रहे हैं. इन दोनों के बीच में चेक करना, इन दोनों के बीच में, A और D के बीच में मुझे किसको कहाँ पे रखना है. ऑरेंज तो ऑलरेडी उसके पोजीशंस पे है. ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? Y को इधर लेके आना है, तो पहले मैं इन दोनों को एक्सचेंज करूंगा, तो Y इधर आ जाएगा, G इधर आ जाएगा. फिर G और B को एक्सचेंज करूंगा, तो फिर से कितने एक्सचेंज बन गए? 2 एक्सचेंजेस. ये हो गया A से D में कन्वर्ट करने को. अब देखो, A से E में कन्वर्ट करना है मुझे, A टू E कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो B तो इधर ही है, मुझे इन तीनों में एक्सचेंज करना पड़ेगा. O से G, O और G एक्सचेंज करना पड़ेगा इधर, ताकि O इधर आ जाए, और Y और G में एक्सचेंज करना पड़ेगा. सो मतलब यहाँ पे भी मुझे 2 एक्सचेंज करने पड़ेंगे. करेक्ट. फाइनली A टू F का एक्सचेंज चेक करते हैं. A टू F में B वहीं पर है, G यहीं पर है, Y और O और Y ही एक्सचेंज करना पड़ेगा सिर्फ. सो कितने एक्सचेंज पॉसिबल है? 1 एक्सचेंज. सो व्हाट यू विल सी ना बेटा, when you are making even number of exchanges, तो मॉलिक्यूल चेंज नहीं होगा, इट इज द सेम मॉलिक्यूल ओनली. सो जितने भी है यहाँ पर देखो, A, B, C and D and E, all of them are identical. These all are identical except A and F, which are enantiomers, because ये दोनों आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज है. So when you are only making even number of exchanges, मतलब आप
मॉलिक्यूलर आइडेंटिटी चेंज नहीं कर रहे हो, बट आप ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कर रहे हो फिशर प्रोजेक्शन पे, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का तरीका है, आप नंबर ऑफ एक्सचेंजेस करके करोगे, हर बार मिरर इमेज को इमेजिन करना मुश्किल होगा। सो इफ इट इज odd number of exchanges, we will say okay, these two are definitely enantiomers of each other. I guess this point is clear to everyone, right? Yes. Okay. So you can see that here, like I said, the distance between all of these groups is same. So if you check out this molecule, इसका मिरर इमेज ऐसे होगा, तो ये दोनों में आपस में कन्वर्ट करने के लिए वन ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज करना पड़ रहा है, ओके। सो 1 और 2 में एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो ऑड नंबर एक एक एक्सचेंज करना पड़ रहा है, बिकॉज दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, राइट। नाउ चेक दिस आउट। अगर इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस किए तो हमेशा हमको फिर से सेम मॉलिक्यूल मिलेगा, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। See, odd number of exchanges leads to enantiomeric forms, while even number of exchanges leads to identical forms. So I took the same question again, A, B, C, D, and made all different permutations. So यहाँ पे 2 exchanges, 1 exchange, यहाँ पे 0 exchange, यहाँ पे 2 exchanges, यहाँ पे 2 exchanges. So I can say that wherever there are 2 exchanges, they are all identical. Wherever there is an odd number of exchanges, that is between 1 and 3, there is an odd number of exchange. I can say that is an enantiomer form. Okay. If you have 2 chiral centers, ये अभी आप बताओगे कि आपस में कितने नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हो रहे हैं इन दोनों के केसेस में। सपोज आई हैव स्ट्रक्चर 1, दिस इज द मेन स्ट्रक्चर, इमेजिन करो ये मेरा मेन स्ट्रक्चर है। विद दिस आई एम ट्राइंग टू कंपेयर ऑल अदर स्ट्रक्चर्स, फर्स्ट विद स्ट्रक्चर 3 हियर and with structure 2 here, okay, and with structure 4 here, clear, this is structure 4, and finally with structure 5 here, okay. I'll remove this out. Right, this is structure 5 here, okay. So I just want you to check out how many exchanges we are making between first and all these 4, okay. जैसे एक बार ट्राई करो, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने हो रहे बताना, 1 से 2 में, 1 से 3 में, 1 से 4 में, 1 से 5 में। सर अनइक्वल डिस्टेंसेस के लिए ये नहीं लगेगा ना? ना, इक्वल डिस्टेंस होने चाहिए। मतलब ये देखो बेटा, आप ये एक्सचेंज नहीं कर पाओगे, मतलब आपको ये देखना है ए सी और ए बी और बी सी ये तीनों एक्सचेंज कर पाओगे। सेम वे ई डी, ई एफ, एफ डी, यही तीनों एक्सचेंज कर पाओगे, ठीक है। यस। और एक्सचेंज की बात हो रही है तो हर कायरल सेंटर के रिस्पेक्ट में चेक करना है आपको, हर कायरल सेंटर के रिस्पेक्ट में क्या आप इवन कर रहे हो या ऑड कर रहे हो, ठीक है। तो चलो इसको मैं असाइन भी कर देता हूँ, इसको कहेंगे हम लोग कायरल सेंटर 1 और कायरल सेंटर 2। तो अब यहाँ का ये हो गया कायरल सेंटर 1, ये हो गया कायरल सेंटर 2, कायरल सेंटर 1, कायरल सेंटर 2, ये कायरल सेंटर 1, कायरल सेंटर 2। I don't know what does that mean. अच्छा 1 to 2 एक्सचेंज, C1 से एक हो रहा है, C2 से 0 हो रहा है, वेरी गुड, करेक्ट। और इसमें ऑड एंड ऑड, 1 2 3 में ऑड एंड ऑड, राइट। सो यहाँ से यहाँ पे एक्सचेंजेस चेक करते हैं। सो 1 to 2 एक्सचेंजेस, 1 to 2 में कार्बन 1 पे कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, ओनली 1 एक्सचेंज। और कार्बन 2 पे कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, कार्बन 2 EDF बिल्कुल सेम है, सो 0 एक्सचेंजेस। यहाँ पे C1, कार्बन 1 पे कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इसी कार्बन 1 यहाँ पर ACB है, सो मतलब हमको B सेम है, A और C चेंज करना है, सो 1 एक्सचेंज। नेक्स्ट कार्बन 2 में कितने एक्सचेंज हो रहा है,
यहाँ पर डी सेम जगह पे है, ई एफ चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे भी एक एक्सचेंज हुआ, राइट बेटा, करेक्ट, राइट आर नो? सो 1 to 4, राइट, सो 1 to 4 में चेक करो, पोजीशन ऑफ सी फिक्स्ड है, ए और बी चेंज है, तो C1 में एक एक्सचेंज हो रहा है, और यहाँ पे नीचे देखना ई डी एफ, यहाँ पर F कॉमन है, E और D में पोजीशन एक्सचेंज करना है, सो C2 is also one exchange. Finally here, see that here. अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस मॉलिक्यूल में मैंने पूरा उल्टा ही लिख दिया इसको, स्ट्रक्चर को, तो जब आप इसको सीधा करोगे ना, स्ट्रक्चर को सीधा करोगे, तो जितना भी कॉन्फ़िगरेशन जो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट राइट है, वो पूरा राइट लेफ्ट हो जाएगा। मतलब इसको अगर ए को ऊपर लाया और एफ को नीचे लाया, तो मतलब इसको बेसिकली ऐसे रोटेट करना है आपको। गॉट इट? एक मिनट, इसका स्ट्रक्चर ऐसे ले लेता हूँ, ये लिखा, थिंक दिस वे, ये जो स्ट्रक्चर है इसको आपको ऐसे रोटेट करना है, समझ में आया? तो इसको आप जैसे ही इसको ऐसे रोटेट करोगे फिर तो ए ऊपर आ जाएगा, करेक्ट? बट एक चीज आप ध्यान से देखो, जैसे ही ए ऊपर आ जाएगा तो पोजीशन ऑफ बी सी और डी ई चेंज हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट का राइट हो रहा है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। सो बस वो ध्यान रखना है। सो विच मीन्स इफ यू राइट दिस सेम स्ट्रक्चर एज ए अबव एंड एफ बिलो, देन इसमें बी और सी किधर रहेंगे? बी इधर रहेगा, सी इधर रहेगा, और यहाँ पर डी इधर रहेगा, ई इधर रहेगा। ओके, सो नाउ यू चेक आउट द एक्सचेंज हियर। सो इन दोनों में एक्सचेंज क्या होगा? सो ये दोनों में एक्सचेंजेस कैसे है? ए उसी जगह पर है, बी और सी में एक्सचेंज है। सो कार्बन 1 पे एक एक्सचेंज हुआ, कार्बन 2 at this position you can see D and E is one exchange, so this is one exchange. Okay, I guess all of you got that right. Now first case ना बेटा, if both of them were even, check it out, अगर दोनों even होते तो वो identical होता, मतलब दोनों जीरो है या दोनों even नंबर है, 2 exchanges है, तो वो identical होता। एक एक odd है, एक even है, मतलब ये दोनों mirror image तो नहीं हो सकते, so such set is diastereomers, so we can say these two are diastereomers, these two are diastereomers, so 1 and 2 are diastereomers of each other. Next 1 and 3 को चेक करना, यहाँ पे 1 1 एक्सचेंज हो रहा है, सो डेफिनेटली दीज आर एनैंशियोमर्स। सो ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस है, एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, ये दोनों 1 and 1 एक्सचेंज, सो डेफिनेटली दिस इज आल्सो एन एनैंशियोमर। यहाँ पे भी 1 and 1 हो रहा है, ये भी एनैंशियोमर है, ठीक है? So instead of directly given in a simple form, you would be given in this twisted form. So just be aware of it. Twisted form में भी दिया है, तो हम लोग exchange करके उसको enantiomeric form में लेकर आ सकते हैं. Okay, so this can easily be exchanged into either enantiomeric form you can see, or कोई diastereomeric form भी हो सकता है. I guess this is clear, everyone. So that's what it is. So 1 and 2 are 1 and 2 are diastereomers, rest all are enantiomers. Clear? Okay. 1 minute. Right. I guess all of you got this now. Now check what are diastereomers. By definition, diastereomers क्या होता है? Anything which is not mirror images but they are stereoisomers of each other. Molecules which are not mirror images but are stereoisomers of each other, we call them as diastereomers. Okay. Diastereomers may be optically active, they may not be optically active. For example, geometrical isomers. Cis and trans are geometrical isomers as well as diastereomers. Because वो दोनों आपस में mirror images में नहीं है, ना वो superimpose होते हैं, correct? आपस में superimpose भी नहीं हो सकते हैं. And most importantly, they are stereoisomers of each other. That's why they are called diastereomers.
Okay. Now, dash stereomers will always have different physical and chemical properties. Reason being, dash stereomers में आपको dipole moment different मिलेंगे, because cis का dipole अलग होता है, trans का dipole अलग होता है. वैसे ही even in the optical isomers, when you check it out, if two molecules are dash stereomers, उनमें optical activity as well as उनमें dipole moments different होंगे, so physical chemical properties will be different. Fractional distillation can be used for separation, which means if you have set of two dash stereomers, उन दोनों में boiling point का difference definitely रहेगा, क्योंकि mu effective, that is effective dipole moment would be different. So therefore they can be differentiated or easily separated by boiling point differences. Okay. Mainly whenever we think about separation method, we should use fractional distillation, crystallization, chromatography. क्वेश्चन में कोई भी टर्म मेंशन किया हो, डैश स्टीरियोमर्स को आप सेपरेट कर सकते हो, एनेंशियोमर को नहीं. एनेंशियोमर को हम लोग कभी सेपरेट नहीं कर सकते, बस ये ध्यान रखना है. ठीक है. Now suppose if there is only one chiral center, dash stereomers cannot be formed, because if you have single chiral center here, got it? In case of single chiral center, you will see if this carbon, if you check it out, if this is R configured, the other has to be S configured. और ये दोनों में exchange देखना, एक ही exchange है, even exchange. So these two will only exist as enantiomer. So dash stereomer जैसा pair बन ही नहीं सकता है if there is only single chiral center. Clear, guys? Next, if you have two chiral centers are exchanged at one single chiral center, then there are dash stereomers. Okay, so that is what I told you here. If you check out this molecule, यहाँ से आपके JEE क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे. देखिए A, B, C, D ये चारों कंपाउंड्स दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है ये चारों कैसे रिलेटेड. सिंपल एक्सचेंजेस चेक करना गाइस. देखो यहाँ पे हाइड्रोजन OH एंड H दोनों में एक एक्सचेंज, यहाँ पे H एंड OH ये दोनों में एक्सचेंज. बेसिकली ये दोनों मिरर इमेजेस है R प्लस में, बट दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है. दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब A और B क्या है, दे आर मीजो फॉर्म्स ऑफ ईच अदर. मीजो मतलब आइडेंटिकल. सो जब आइडेंटिकल है तो एक्सचेंज का कोई फायदा नहीं है. ठीक है. सो A, B आर मीजो फॉर्म्स. ठीक है. नेक्स्ट B एंड C चेक करो, ये दोनों कोई मिरर इमेजेस नहीं है. एवरीबॉडी ए बी कभी भी डायस स्टीरियोमर नहीं बन सकते, एक तो मिरर इमेजेस है. ठीक है. डायस स्टीरियोमर्स का डेफिनेशन ही ये है कि दे आर टू बी नॉन मिरर इमेजेस. सो बी एंड सी आर नॉन मिरर इमेजेस एंड सी द एक्सचेंजेस हियर. देखो इस कार्बन के रेस्पेक्ट में हमारे पास H और OH है. ठीक है. अब इसका ये S कॉन्फिगर्ड है या नहीं है ये पहले समझते हैं. S कॉन्फिगर्ड है या नहीं है कैसे चेक करना है. ऐसा है, H है, OH है, मिथाइल है एंड सम R ग्रुप है. ठीक है. This is priority number 1. Next, this is priority 2, priority 3 and priority 4. Correct? And S find करने के लिए हमने क्या बोला, 4 को नीचे लेके आओ. बराबर. और हमको पता है कि 4 को नीचे लाने में हमको even number of exchange करने पड़ेंगे, because you need to keep it same molecule. So S, if it is there, R can be exchanged here, OH can be exchanged here, methyl can be exchanged. दोनों में देखो मैंने even number of exchanges किए हैं, 2 exchanges किए हैं, मतलब ये दोनों आइडेंटिकल है. When you make even number, they are identical. Now you can see how the priorities. This is 1 and this is 2, this is 3 and this is 4. अभी 4 को भूल जाओ, 1 2 3 कैसे घूम रहा है चेक करो. Got it? So OH and then we have methyl here. Sorry, OH, then we have R here and methyl here. So how are they moving around? 1 2 3. That is moving clockwise, which means they are R actually. So S नहीं है, ये R है. ठीक है. So this is R and R. Clear guys? अब यहाँ पर क्या आएगा, ये R configured है. So if this is R configured in the mirror image, sorry, if you check out here, एक exchange किया हमने, एक exchange किया तो वो R S में बदल जाएगा, और ये R वैसा का वैसा ही है, R R ही रह गया ऐसे. So देखो जब दोनों कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन दोनों चेंज हो जाता है तभी उसको एनांशियोमर कहेंगे, राइट. लेकिन यहाँ पर R एंड R है, यहाँ पे S एंड R है. सो ऐसा कॉम्बिनेशन हमेशा डायस्टीरोमर बनेगा. एंड हियर इफ यू चेक इट आउट, दिस वुड बी
दिस इज एस कॉन्फिगर्ड क्योंकि ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस है. Since these two are mirror images of each other, this has to be R and this has to be S. Correct? So S का R बनना, R का S बनना, which means they are mirror images of each other and they are enantiomers. B and C. सो फर्स्ट वाला भी एसएस होगा ना इस लॉजिक से? फर्स्ट वाला, हाँ फर्स्ट वाला सॉरी ये SS. तो ए और बी भी एनैंशियोमर्स होगा. A और B enantiomer नहीं होंगे क्योंकि इसमें plane of symmetry आ गया ना. अच्छा हाँ, सॉरी plane of सॉरी, वो तो symmetry. मेसोमर्स हो जाएगा. ये mesomers हाँ होते हैं. सॉरी, ठीक है. या सॉरी गॉट इट. बट अगर मैंने ऐसे पूछा समर्थ कि A और C क्या है, A और D क्या है, तो ये क्या बनेंगे? सर डायस्टेरियोमर्स, क्योंकि एक ही चेंज हो रहा है. परफेक्ट, एक ही चेंज हो रहा है और मिरर इमेजेस तो बिल्कुल नहीं है, तो ये सारे डायस्टेरियोमर्स. ओके, सो सब लोग अभी ध्यान देना ABCD और इसका रिजल्ट चेक करना जो मैंने लिखा है. आई गेस सबको क्लियर है. A और B यस सर, क्लियर. B और C डाया, B and D डाया, C and D enantiomers, A and D भी डाया. ओके राइट. डायस्टेरियोमर्स दो तरह के होते हैं बेटा, एरिथ्रो एंड थ्रियो. Erythro means same groups on the same side in the Fisher projection. Trio means same group on the opposite side on the Fisher projection. For example, OH, OH. सर हाँ बेटा. सर पहले में एक डाउट है, मीजो ग्रुप में और आइडेंटिकल में कैसे डिफरेंस करते हैं? Meso identical same ही है ना. These Okay. two are meso and also Confusion. identical. क्योंकि इसको हम लोग सुपर इम्पोज कर सकते हैं ना इसके ऊपर. हाँ. जो भी सुपर इम्पोज हो जाता है वो सारे आइडेंटिकल है. ओके. In diastereomers, we can use these two terms, erythro and thrio. Erythro मतलब दोनों ग्रुप सेम साइड पे होने चाहिए. थ्रियो मतलब दोनों ग्रुप ऑपोजिट साइड पे होने चाहिए. सो दीज टू आर एरिथ्रो, करेक्ट, एंड दीज टू आर थ्रियो. क्लियर. अब इसमें चेक करना, इसमें कैसे होगा. ये एरिथ्रो आर एंड आर हो सकता है या एस एंड एस हो सकता है. इधर आर एंड आर होगा तो सपोज ये एस एंड एस होगा, बट दोनों के बीच में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये दोनों मीजोफॉर्म्स हो गए. क्लियर. सो दीज आर मीजोफॉर्म. वाइल इफ यू चेक आउट ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस है तो दीज टू आर एनैंशियोमर्स. करेक्ट. तो अगर यहाँ पे आर एंड एस होगा तो यहाँ पे एस एंड आर होगा. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट एरिथ्रो एंड थ्रियो पेयर विल ऑलवेज बी अ डायस्टेरियोमर. जस्ट लाइक सिस एंड ट्रांस पेयर इज ऑलवेज अ डायस्टेरियोमर, यहाँ पर एरिथ्रो और थ्रियो हमेशा एक डायस्टेरियोमर ही बनेगा. I guess that is clear, right? इससे रिलेटेड नहीं है, इसको मैंने एक एग्जाम्पल की तरह दिया था, इसको चेक कर. So I can say that if at all I have A, B, C, D, again we can say that A and B, which are erythro, in this case they are mesoforms, right? And A and C are dia, and A and D are also diastereomers. B and C are also dia, and B and D are also dia. And finally, C and D are thrio and thrio only, they are enantiomers. Okay? Sir, can you show the definition for one more time? Yeah, check. Got it. Right. Now you just want to check out this, how they are related with each other. ठीक है. Just एक बार check करना ये compound और बताना इनमें relationship क्या क्या है. A, B, C, D, E, F. Okay. Check that out students. A, B. A, B में देखो कैसा है. ये दोनों आपस में it is like मिथाइल इस तरफ है, इस तरफ है, मतलब ट्रांसफॉर्म है ना. These are like trans to each other. और यहाँ पे भी trans to each other है. क्लियर. नहीं ये भी यहाँ पे भी तो ट्रांस है, ये ट्रांस है, ये ट्रांस है, तो कैसे है ये दोनों आपस में. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डिसाइड करना है क्या ये कायरल सेंटर है. इज दिस ए कायरल सेंटर एवरीबॉडी? Yes.
यस, इट इज ए कायरल सेंटर। 1 2 3 4 4 डिफरेंट ग्रुप्स है तो कायरल सेंटर है। वैसे ही ये भी कायरल सेंटर है, सेकंड वाला। ये दोनों कायरल सेंटर। अब ये दोनों में आपको आप चेक करोगे, इसको सपोज ये मॉलिक्यूल को मैं इसके ऊपर लेके आ जाऊंगा, तो हाउ डज इट लुक लाइक? मतलब इमेजिन दिस वे कि ये मिरर इमेज। ऊपर की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। ये मिरर में ऐसे ही होता है ना, मिरर को ऊपर लगा के चेक करना है बेटा। जब भी साइक्लिक फॉर्म्स होते हैं तो ऐसे सोचो, ये एक साइक्लिक फॉर्म है, उसके ऊपर दूसरा साइक्लिक फॉर्म रखा है, ऐसे बीच में मिरर है। ओके, यहाँ पे एक साइक्लिक है, ऊपर एक साइक्लिक है, बीच में मिरर है। तो अगर ये देखो, ये साइक्लिक में जो ऊपर आ रहा है, इस साइक्लिक में नीचे आएगा ना मिरर इमेज में, एवरीबॉडी। सो बीच में मिरर है, तो ये इसमें ऐसे ऊपर आ रहा है कोई ग्रुप, तो इस वाले साइकिल में ये नीचे आएगा। करेक्ट। सो ऐसे हम हमेशा इमेजिन करना, जो इस मॉलिक्यूल में ये ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इस मॉलिक्यूल में नीचे की तरफ आ रहा है, और इस मॉलिक्यूल में ये नीचे की तरफ आ रहा है, इस मॉलिक्यूल में ऊपर की सर तरफ आ रहा कर्सर है। नहीं दिख क्या बेटा? कर्सर नहीं दिख रहा। कर्सर नहीं दिख रहा था। अच्छा अभी चल रहा है। हाँ सर। हाँ, सो मैं कह रहा था, इसके कार्बन के रेस्पेक्ट में मिथाइल ऊपर जा रहा है, हाइड्रोजन नीचे है। यहाँ पर नीचे, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, मतलब ये डेफिनेटली एनैंशियोमर है। यस सर। क्लियर है एवरीबॉडी कैसे मिरर इमेज देखना है? नेक्स्ट, बी और सी को देखते हैं। बी और सी में दोनों एक तरफ आ चुके हैं, मतलब यहाँ पे ये डेफिनेटली मिरर इमेजेस नहीं है एक दूसरे के, तो ये क्या बन गया? डायस्टेरोमर्स। आया। करेक्ट। सी और डी देखना, सी और डी में भी वही प्रॉब्लम है, मिथाइल एक तरफ, ये मिथाइल एक तरफ है, तो ये क्या आया। बन जाएंगे? डाया बन जाएंगे। ओके। ए और सी को चेक करना, ए और सी सेम, वो भी डाया है। करेक्ट। बी और डी को चेक करना, बी और डी वो भी डाया है। ओके। नेक्स्ट, सी और ई को चेक करना, ये सी और ई को चेक करना। सी और ई आपस में क्या है? एनैंशियोमर है क्या ये? यस। ना ना, फिर से देखो, एनैंशियोमर है। मेसो। मेसो, वेरी गुड, बिकॉज यहाँ पे हम लोग को प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है। एक बार प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया मतलब वो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएगा। सो बिकॉज दीज टू डज नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, which means they are superimposable and they are the mesoforms. So C and D are mesoforms. A and D चेक करना, A and D कैसा है? देखो, इसको ऊपर कर दूंगा, मतलब ये D को मैं इस तरफ लेके आ जाऊंगा, तो कैसे आएगा? ये मिथाइल नीचे की तरफ आएगा, ये मिथाइल ऊपर की तरफ दिखेगा, है ना? तो मतलब ये B और D आइडेंटिकल दिखेंगे। एवरीबॉडी कैन यू सी? B and D एकदम आइडेंटिकल दिखेंगे, जैसे ये मिथाइल को मैं ऊपर की तरफ लेके आ जाऊंगा, राइट? So when you bring that, so which means this would become what? Enantiomer. Done? Guess all of you understood that? यस सर। Yes, sir. Okay. So same way ये तीनों में भी चेक करना, AB, AC और BC, ये तीनों AB, AC and BC. Okay. Same way ये तीनों में चेक करना है। देखो, A और C में चेक, A और B में चेक करते हैं। ओके। देखो, इसको ना ऐसे सोचो कि इसको मैंने ऐसे होल्ड करके रोटेट कर दिया बाय 180 डिग्रीज। जैसे इसको 180 डिग्रीज टर्न करेंगे तो ये ग्रुप क्या बन जाएगा? Cl इधर आ जाएगा, और जो कि अंदर की तरफ था वो बाहर आ जाएगा अभी, और जो बाहर की तरफ था वो अंदर चला जाएगा। सो ये दोनों तो सेम ही है ना। तो अब इन दोनों को कंपेयर करो, अभी ये दोनों कैसे दिख रहे हैं?
एक दूसरे के आया। मिरर इमेजेस है, मिरर इमेजेस है ना बेटा। देखो ये बाहर आ रहा है, ये अंदर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है, मतलब ये मिरर इमेजेस है डेफिनेटली। तो दीज आर एनहांसोमर्स, राइट। ओके, अब ए और सी को कंपेयर करो, सॉरी ये ए और सी को कंपेयर करो। ब्रोमीन बाहर आ रहा है, ये ब्रोमीन अंदर जा रहा है, क्लोरीन अंदर जा रहा है, ये क्लोरीन बाहर आ रहा है। तो ए और सी भी एनहांसोमरिक फॉर्म है, करेक्ट, ये भी एनहांसोमरिक फॉर्म है। बी और सी को चेक करना, बी और सी में इसको जैसे ही उल्टा किया तो सेम ही आ जाएंगे दोनों, तो ये दोनों आइडेंटिकल है। सर बी और सी आइडेंटिकल कैसे हुए? नहीं अच्छा ऐसे सोचो ना, अगर ए और बी, ए और बी एनहांसोमर होंगे और ए और सी एनहांसोमर होंगे, तो ये दोनों तो आइडेंटिकली होने चाहिए बाय हाँ, लॉजिक, वो राइट। लॉजिक से हाँ। हाँ, और इसको देखो, अब इसको रोटेट करो बेटा, इसके रेस्पेक्ट में इस प्लेन को 120 डिग्रीज रोटेट करो, तो जो बी आर बाहर आ रहा था रोटेट करने के बाद अंदर चला जाएगा, और जो सी एल अंदर था वो बाहर आ जाएगा, हाँ बस। ओके हाँ got it. चलो फोर्थ चेक करो। या पी क्यू एनहांसोमर, हाँ। देखो यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है बेटा, इफ यू ट्राई टू रोटेट दिस, क्योंकि मुझे ये ग्रुप बाहर आ रहा है, उसको अंदर लेके जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, विद रेस्पेक्ट टू दिस मुझे इसको रोटेट करना 180 पड़ेगा, डिग्री। 180 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। अब मैंने जैसे ही रोटेट कर दिया, मॉलिक्यूल कैसे बन जाएगा, ये कुछ ऐसा अंदर की तरफ चला जाएगा, और ये डबल बॉन्ड इस तरफ आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, है ना। तो ये पी कंपाउंड का ये ग्रुप है, ये दोनों सेम है, ठीक है। बट इसमें ऐसे आ रहा है क्या, नहीं, तो ये दोनों इसमें ये दोनों डिफरेंट है ना, उन दोनों में डिस्टेंस डिफरेंस आ रहा है। ये बेटा ये देखो, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक डिस्टेंस सेम है या डिफरेंट है। अच्छा ये डिस्टेंस तो सेम है, क्योंकि यहाँ पे आप डिस्टेंस लो या यहाँ से डिस्टेंस लो, ये डिस्टेंस तो सेम। बट इसमें कैसा हो रहा है, इस तरफ का कायरलिटी सेम मेंटेन करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जो है सिस या ट्रांस में चेंज हो रहा है ना। ओके यस। एवरीवन, सो डबल बॉन्ड, एक मिनट मैंने गड़बड़ किया है, सिस ट्रांस तो है ही नहीं यहाँ पे, दोनों तरफ सेम है मॉलिक्यूल। Listen up. It is like this group. First, we know that these two are non-superimposable for sure, क्योंकि ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल है। क्योंकि इसको अगर मैं इधर सुपर इम्पोज करने जाऊंगा, तो ये ग्रुप जैसे इधर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, पी एंड क्यू नॉन सुपर इम्पोजिबल और आपस में मिरर इमेजेस है। ओके,
क्यों मिरर इमेज है ये देखना, अगर मैं इस ग्रुप को व्हेन इट इज गोइंग डाउन, अगर ये ऊपर की तरफ आ रहा है तो ये सेम साइड पे भी हो सकता है या ऑपोजिट साइड पे भी हो सकता है, इट डजंट मैटर बिकॉज उन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है। इसको एलिन की तरह लिख के देखते हैं बेटा, एलिन बहुत इजी करवा देगा हमको। इट इज एज इफ ये दोनों के बीच में हम लोग के पास एक डबल बॉन्ड हो। इमेजिन एलिन की तरह सोचना, सी डबल बॉन्ड सी है, फिर से सी डबल बॉन्ड सी है, और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है। सेम वे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज लाइक यहाँ पर भी एक मिथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है। ठीक है, दिस इज द वे इट इज। Okay, now if you check it out here, if these two if you check out this methyl, this is coming out of the plane and this hydrogen is going inside the plane. This is how it is. Okay, इसका मिरर इमेज लेंगे तो कैसा रहेगा, देखो इसका मिरर इमेज लेते हैं अभी। so if at all I take a mirror image of that, then सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा ना, सिर्फ इस केस में चेंज होगा कि ये अंदर की तरफ जाएगा और ये बाहर की तरफ आएगा। यहां पर तो चेंज नहीं होगा ना क्योंकि ये ऑलरेडी प्लेनार पे है। देखो ये ऐसे दो प्लेन है, राइट, दोनों प्लेन में, अब ये दोनों प्लेन में मिथाइल नीचे आ रहा है तो यहाँ पर मिथाइल आगे जाएगा, बट यहाँ पर तो ये सब कुछ प्लेन है, यहाँ पर भी ये सब कुछ प्लेनार है, वो तो वैसे का वैसे दिखेगा, जैसे प्लेनार पे दिखेगा वैसे दिखेगा। सो सेम थिंग इफ यू कंसिडर दीज टू नाउ, दीज टू आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ओके, नहीं अगर इस तरफ कोई भी चेंज आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी पी और क्यू में चेक करो, इट इज लाइक यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पर ऊपर की तरफ आया, तो पी एंड क्यू क्या बन जाएंगे बेटा, एनैंशियोमर, क्योंकि उस तरफ सेम ही रहना चाहिए। ये वाला ग्रुप तो जैसा है वैसे ही रहेगा बिकॉज इट इज ऑन द प्लेन। ओके, सेम वे इफ यू चेक आउट क्यू एंड आर, क्यू एंड आर में कैसा है, देखो इसको जैसे ही मैंने चेंज किया ये दोनों आपस में कैसे दिख रहे हैं, राइट, इफ यू सी इट, चेक इट आउट, क्यू एंड आर में ये जैसे ही इसको नीचे कर दूंगा, इसको देखो 180 टर्न किया, इसको रोटेट किया तो सेम आ जाएगा क्यू एंड आर, क्यू एंड आर एग्जैक्टली सेम दिखेगा। ये जो अंदर ये जो बाहर आ रहा है वो अंदर चला जाएगा और ये ग्रुप ऐसे चेंज हो जाएगा। तो यू कैन सी क्यू एंड आर आर एग्जैक्टली सेम। सो क्यू एंड आर क्या है, आइडेंटिकल। ठीक है, चेक आउट पी एंड आर, चेक आउट पी एंड आर कैसा है, यहाँ पे ग्रुप सेम दिख रहा है, यहाँ पर चेंज दिख रहा है, मतलब ये भी तो सेम ही एनैंशियोमर है, ये एनैंशियोमर है, क्योंकि इसको जैसे ही रोटेट करोगे ये जो बाहर की तरफ आ रहा है वो अंदर की तरफ चला जाएगा, तो ये दोनों आपस में एनैंशियोमर बन जाएंगे। क्लियर है गाइस? मीजो नहीं होगा अर्नव, ठीक है, क्योंकि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ठीक, सो मीजो फॉर्म आएगा नहीं। नेक्स्ट, ट्राई दिस वन, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ए एंड बी आपस में सर कैसे, बट मीजो और आइडेंटिकल सेम ही होता है। ना ना, मीजो तभी यूज करेंगे तब दो कायरल सेंटर हो। ओके, करेक्ट, आइडेंटिकल अदर वे में भी हो सकते हैं पर बाय सम अदर रीजन, बट दो कायरल सेंटर है फिर भी उनके बीच में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है तो तब मीजो वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, चेक फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ओके, फर्स्ट ए एंड बी गाइस, ए एंड बी चेक करो कैसा है।
बस इतना बता दो कि ये दोनों मिरर इमेजेस है क्या आपस में। वेरी गुड, सो दे आर डेफिनेटली नॉट मिरर इमेजेस। क्योंकि देखो मिरर इमेज होना चाहिए तो एक तो ये पूरा स्ट्रक्चरली डिफरेंट होना चाहिए, नीचे से जाना चाहिए। ये तो मिरर इमेज कुछ ऐसे दिखेगा ना, ये देखो मिरर इमेज का मतलब कुछ ऐसे होना चाहिए, ऐसे, फिर ये नीचे से ऐसे जाके ऐसे कुछ टच कर रहा है, करेक्ट। फिर यहाँ पे जो ओज ऊपर आया यहाँ पर नीचे आना चाहिए। ऐसे रहेगा तो ये दोनों आपस में मिरर इमेज होंगे। ये तो मिरर इमेज है नहीं, ये जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही, ये सिर्फ इस जगह पे चेंज हो रहा है कार्बन पे, करेक्ट। सो दे आर डेफिनेटली नॉट मिरर इमेजेस, यस। एंड इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सो एंड एंडो टाइप कहेंगे इसको, राइट। ये इस व्हाट इज ब्रिज के अलोंग रहेगा तो हम लोग इसको एक्सो के नाम से पुकारेंगे, और ब्रिज के बिलो रहेगा तो एंडो के नाम से पुकारेंगे, करेक्ट। सो इट इज लाइक सिस एंड ट्रांस ओनली, दे आर लाइक सिस एंड ट्रांस। तो ये दोनों आपस में क्या बन जाएंगे, डायस्टेरियोमर्स। नेक्स्ट, सिक्स्थ वन, PQR. See how PQR are aligned. Check P and Q first. BR सेम है, एक Cl की जगह पे चेंज हो रहा है, सिर्फ Cl की जगह पे चेंज हो रहा है, ओके। तो ये क्या हो गया आपस में, डायस्टेरियोमर्स। सारे जगह पे चेंज होता है तभी उसको एनेंटियोमर कहेंगे। तो P और Q तो डायस्टेरियोमर बन गए। P एंड R यहाँ पर सेम है, यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है, सारे जगह पे डिफरेंट होगा तभी एनेंटियोमर। यहाँ पे ऐसा नहीं है, दो जगह पे डिफरेंट है, एक जगह पे सेम है, तो ये मिरर इमेज नहीं बन सकता, अभी भी ये डायस्टेरियोमर। Q एंड R सेम प्रॉब्लम, Q एंड R में भी दो तरफ एक जगह पे ही चेंज हो रहा है, बीच वाला कार्बन चेंज हो रहा है, लेफ्ट या राइट में इस तरफ चेंज हो रहा है, सो दैट इज आल्सो डायस्टेरियोमर। सो अगर एक ही एक्सचेंज हो रहा है तो बाकी जगह एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सो दैट इज गोइंग टू बी अ डायस्टेरियोमर फॉर्म ओनली। देखो मीसोफॉर्म आर नो, लाइक यू आस्क्ड, वी शुड हैव मिनिमम 2 chiral centers beta, plus symmetry must be existing between them somewhere between them there has to be a plane of symmetry existing, which makes it optically inactive, and such type of an inactivity is called internal composition, and it is an optical isomer. Okay, right, so it is an optical isomer. So same way, if you look at it here, I've given you one example, then you can do the next one. A और B, A और C देखोगे तो डाया डाया एनांशियोमर मिलेगा। एक बार फिर से आप लोग बाद में चेक करना इसको, ठीक है। नेक्स्ट, if two meso cannot be enantiomers, they have to be identical. So these two are having a plane of symmetry. So although they look like mirror images, these two are one and the same, and they are optically inactive compounds. बस इसमें से आपको सिर्फ एक काम करना है कि meso find करना है. Just check out which of them have meso in it. Okay, whether there is any plane of symmetry existing or not in all of these cases. Okay. Check this from A to O. फर्स्ट वन मीजो है, फर्स्ट वाला केस चेक करो, मीजो। फर्स्ट वाले केस में मीजो नहीं है, सो नो, इट इज नॉट मीजो बिकॉज देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री पासिंग। सेकेंड वन में मीजो है, डेफिनेटली प्लेन ऑफ सिमेट्री इज पासिंग। थर्ड में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मीजो। फोर्थ में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नॉट मीजो। फिफ्थ वन ई में चेक करो, इज इट मीजो? नाउ चेक दिस, इसको हम लोग पहले एक्सचेंज करके देखेंगे, क्लियर? क्योंकि
मीजो लाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? मीजो के लिए दोनों तरफ सेम होने चाहिए, तो इसको जस्ट ऐसे रोटेट करके चेक करो। मिथाइल इधर है, हाइड्रोजन इधर है, Br इधर है, और इसको पीछे वाले को मैं रोटेट करता हूँ और मिथाइल को सेम जगह पे लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सो यहाँ पर मिथाइल आ जाएगा और नीचे इधर ब्रोमीन आ रहा है और इधर हाइड्रोजन आ रहा है, करेक्ट? ऐसे आ रहा है, तो डेफिनेटली उनके बीच में कोई सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, so definitely this is not a mesoform. Okay. अब इस वाले को चेक करो, पीछे वाले को रोटेट किया और इस तरह लेके आ रहा हूं मैं। सर इसमें अगर हो जाती तो मीजो बोलते हैं। नहीं, फिर हाँ, अगर वो इस तरफ आ जाता है, Br के बदले में H इधर आता और Br इधर आता, तो वो मीजोफॉर्म हो जाता। okay. क्योंकि कन्फर्मर हमेशा घूमते सर रहेंगे पर ना जो बेटा। ओरिजिनल जो फिगर भी है वो तो है। हाँ बेटा, मेरा पॉइंट यही है कि ये कन्फर्मर में स्टेबल तो रहेगा नहीं, कन्फर्मर्स हमेशा घूमते रहेंगे ना। क्लियर? सो आपको जब भी यस मीजोफॉर्म ढूंढना है तो सारे कन्फर्मर्स में ढूंढना है आपको। ओके, किसी भी कन्फर्म में अगर मीजो मिल रहा है तो मतलब मॉलिक्यूल इनएक्टिव ही रहेगा। ओके, यस इसमें भी ऐसे ही है, यहाँ पे चेक करो। इसको अगर मैं ऊपर की तरफ किया ऐसे, तो यहाँ पे Br मिथाइल, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ये Br, क्योंकि यहाँ पर अभी Br आ जाएगा, यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो यहाँ पे भी नहीं है ना, ये भी सेम जगह पे नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट मीजो। नेक्स्ट, इज दिस मीजो? अब किसी भी एंगल में देखो मीजो नहीं है, ये कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रहा है। डन एवरीबॉडी? नेक्स्ट, सी द IJKLMNO केस। राइट, आई में प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, डेफिनेटली मीजो है। जे में प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, डेफिनेटली मीजो है। नेक्स्ट, यहाँ पे चेक करो, इफ यू ड्रॉ लाइन हियर, ये दोनों सेम जगह पे दिख रहे हैं, ये दोनों सेम जगह पे दिख रहे हैं, सो डेफिनेटली ये भी मीजो फॉर्म है। यहाँ पे अगर ये प्लेन ड्रॉ करेंगे तो विद रेस्पेक्ट टू दिस प्लेन ये दोनों सेम जगह पे दिख रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो मीजो। एम, यहाँ पर आप ऐसे चेंज इस वाले प्लेन से चेक करोगे तो डेफिनेटली ये भी मीजो है, दिस इज ऑल्सो मीजो। नेक्स्ट, इस वाले कन्फर्मर में आप चेक करोगे, देखो ये मिथाइल को मैं इधर लेके आ सकता हूँ, ये OH को इधर लेके जा सकता हूँ, ये H को इधर लेके जा सकता हूँ, सब एक ही जगह पे आ जाएंगे, मतलब ये मीजो है। ओके, यहाँ पे ये H और ये H सेम जगह आएंगे, तो ये दोनों सेम जगह आएंगे, ये दोनों सेम जगह आएंगे, मतलब ये मीजो नहीं हो सकता। यहाँ पे मिथाइल मिथाइल एक जगह, OH OH एक जगह, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक जगह, तो डेफिनेटली ये मीजो फॉर्म। तो किसी भी फॉर्म में दिया, वो फिशर प्रोजेक्शन में दिया हो या नॉर्मल 3 डायमेंशनल फॉर्म में दिया हो, न्यूमैन प्रोजेक्शन में दिया हो, you should be able to comment whether they are meso or not. Clear everyone? Any doubt in this? नो Check out the pseudo-chiral center. See, if the chiral center whose chirality depends on the configuration or chiral center through which plane of symmetry is passing, like this, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में सेम मॉलिक्यूल्स है, सो देन दैट इज कॉल्ड सूडो कायरल सेंटर। ठीक है, अब ये देखना, सूडो कायरल सेंटर में
विथ रेस्पेक्ट टू दिस, अगर मैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, ठीक है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, तो यहां पर एस आ रहा है, बी और इस जगह पे एस आ रहा है, इस जगह पे आर आ रहा है, तो बीच में क्या कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अगर दोनों तरफ डिफरेंट आ रहा है ना, here we get it as S and here we're getting as R, then these two groups become different beta. Then this is a different group altogether. This is a different group altogether, right? So these two are different groups now. Since they are different groups, now I can discuss them as the two different groups and make this as a chiral center. और ये chiral center की तरह हम लोग चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं या तो R कॉन्फ़िगर्ड होगा या तो S कॉन्फ़िगर्ड होगा. Only and only when these two are different. अगर दोनों सेम होंगे तो ये डेफिनेटली कायरल सेंटर नहीं होगा. दिस वोंट बी कायरल सेंटर. क्लियर? सो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये 3 कायरल सेंटर्स है. सो इसके लिए pseudo chiral center is always subject to the configuration of the top and bottom carbons. So if these two have a configuration opposite to each other, the center carbon will also show optical also act like a chiral center. And between these two, the priority is always given more to R as per CIP rules. As per CIP rules, ये ग्रुप और ये ग्रुप में हाई ज्यादा प्रायोरिटी ये ग्रुप को है. ओके, सो इसको यहाँ पे S आ रहा है, यहाँ पर R आ रहा है, राइट? But if both of them are S, in this case, if both of them are S, then center one definitely will not have any chiral centers. Now we say there are only 2 chiral center and both of them are real. So इस केस में हम लोग बोलेंगे there are 3 chiral centers out of which 2 are real and 1 are pseudo. Okay. Sir, R has more priority in S in what sense? Like, See, according to consider- CIP rules, that's all. जैसे हमने cis is more priority than trans दिया है, Z is more priority than E दिया है, correct? अच्छा, वैसे ही CIP rules में R is given more priority than clockwise rotation is given more priority than anti-clockwise rotation. Okay, right. So based on that, you have to check out whether there is any uh, chiral centers कितने हैं, मतलब are there only real chiral centers or we have any pseudo chiral center also existing. Now if you have noticed beta, one thing notice this because आगे जाके काफी सारे मैकेनिज्म में इसका हेल्प होगा. यहाँ पे अगर S है तो ब्रोमीन अगर सेम साइड पे होगा ना बेटा, तो ये S का ये R बन जाएगा. ठीक है, बट अगर ब्रोमीन ऑपोजिट साइड पे है तो ये S होगा तो ये भी S होगा. तो ये नोटिस करना हमेशा. इस तरफ ब्रोमीन राइट साइड पे है और ये लेफ्ट साइड पे है तो ये S का S रहेगा. अगर ब्रोमीन इधर है और यहाँ पे ब्रोमीन है तो R और R रहेगा. बट दोनों सेम साइड पे रहेंगे तो S और R रहेंगे या R और S रहेगा ऐसे. ठीक है, क्लियर? सो सिर्फ उसको देख के पता कर सकते हो आप. देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पर ब्रोमीन है तो ये क्या हो गया, R एंड R हो गया. तो बीच वाला कायरल सेंटर हो ही नहीं सकता. यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, फिर से R एंड R हो गया. आप बीच वाले को कैसे भी एक्सचेंज कर दो, दीज टू आर सेम मॉलिक्यूल्स. ये दोनों को हम लोग सुपर इम्पोज कर सकते हैं. क्लियर? बिकॉज इट इज लाइक अ मेसोफॉर्म हियर. और ये कोई कायरल सेंटर नहीं है बीच में. ओके, सो 2 real chiral centers are present in this case, right? Okay, so on that basis आपको सिर्फ ये बताना है कि कितने chiral centers इसमें है, रियल है या सूडो है. तो ये देखो R एंड R है दोनों तरफ, तो ये क्या होगा बीच में, ये वाला कोई chiral center नहीं होगा दोनों में. तो यहाँ पे भी 2 chiral centers, यहाँ पे भी 2 chiral centers. अगर ये R एंड S है, ये R एंड S है, तो बीच वाले में R एंड S हो सकते हैं. तो यहाँ पे 2+1 होगा, यहाँ पे भी 2+1 होगा. ठीक है, guess that is clear now, right? Okay. I gave you few cases here. I want you to go through it once again. I've given you the answer key, so please check this whether they are all perfectly matching or not. Okay. Last thing, the most important part of optical isomers is to count how many stereoisomers we have, how many structural we have, how many how many optical we have, how many geometrical we have, and finally how many structural we have. Okay. So
These are all the formula types. पहले हम लोग चेक करेंगे total number of stereogenic centers, right? Which is number of units, not centers. Stereogenic units. Unit means number of pi bonded, number of pi bonds and number of chiral centers. Total कितने हैं? चलो यहाँ पर तो कोई भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स नहीं है जिसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिल रहा है. देयर आर ओनली 2 chiral centers. Since there are 2 chiral centers, so total number of stereoisomers will be 2 raised to power of 2, which is 4. तो मतलब ये क्या क्या हो सकते हैं? एक हो सकता है R एंड R, ये दोनों में R एंड R. एक हो सकता है RS, एक हो सकता है SR और एक हो सकता है RS. ओके, और ये R एंड R और SR ये दोनों क्या होंगे? एनांशियोमर. सो यू कैन सी RR and SS. This would become an enantiomer. Similarly, RS and SR, that would become an enantiomer. और बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन करो उसको हम लोग डैश टीरोमर की तरह पढ़ेंगे. ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल डैश टीरोमर है, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल डैश टीरोमर है, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, कोई भी किसी को पढ़ोगे बाकी कॉम्बिनेशन सब डैश टीरोमर से. ठीक है. नेक्स्ट, total number of enantiomeric pairs. If you see how many pairs we have, okay, so this is one pair, this is one pair, so total how many we are getting? 2, right? Total number of pairs, total pairs ही कितने बनेंगे? 4C2, because there are 4 of them, you have to combine with every 2 of them, so 4C2. So how many pairs will get? 6 pairs will get. Number of dash tumor pair कितने होंगे? Total number of pairs minus total number of enantiomeric pairs, तो कितने हो जाएंगे? 4. So we can get 4 dash tumors. This is the most important questions, that is number of fractions on fractional distillation. मतलब आपको कितने fractions मिलेंगे? सपोज ये चारों ग्रुप्स है, देखो ये चारों कंपाउंड्स है इसमें मिक्सचर में. अब मैं हीट करते जा रहा हूँ. ऑन हीटिंग कोई ना कोई फर्स्ट आएगा. ऐसे कितने फ्रैक्शंस आएंगे आपको टोटल, ये बताना है, राइट? सो विच वन विल कम फर्स्ट, और कितने फ्रैक्शंस आपको आएंगे. ओके, देखो what we have learned that whenever we have number of pairs, जितने पेयर से of dash tumors उतने पेयर्स में हम लोग आप बांट सकते हैं, because those would have different boiling point. Clear? So we can say out of these 6 pairs, basically we have 4 molecules. R and R है एक का configuration, एक का configuration है S and S, एक का है RS, एक का है SR. ये 4 configuration. अभी नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कितने आएंगे वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ डैश यूरोमेरिक पेयर्स कितने हैं. 4 डैश यूरोमेरिक पेयर्स है तो एक फ्रैक्शन में ये आएगा, आरआर और एसएस आ सकता है. एक फ्रैक्शन में आरएस और एसआर आ सकता है. वैसे एक फ्रैक्शन में आरआर और एक फ्रैक्शन में आ सकता है, क्या बोलते हैं, आरआर और एसआर आ सकता है. एक फ्रैक्शन में एसएस और आरएस आ सकता है. लाइक दैट वी कैन हैव 4 डिफरेंट फ्रैक्शंस इन दिस केस. Clear? Yes, that is clear everybody. Right. हमेशा नंबर ऑफ डैश सर आप और एक एग्जांपल से दिखा सकते हैं. हाँ, नीचे काफी एग्जांपल्स रखे हुए हैं. देखो यहाँ से सारे एग्जांपल्स ही एग्जांपल्स है. ओके, ये सब कुछ वही काम कर. देखो और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ थोड़ा सा और ज्यादा नंबर ऑफ कायरल सेंटर वाले. ठीक है, सपोज इफ यू हैव 3 कायरल सेंटर्स, इफ यू हैव 3 कायरल सेंटर्स, ठीक है, n इज इक्वल टू 3 है, तो देखो 2 रेज टू पावर ऑफ 3, तो टोटल 8 आने चाहिए. देखो पहले ये दोनों को फिक्स कर दो, आर आर, आर एस, एस आर और एस एस. तो इसका आर एंड आर, एक बार आर एंड एस, एस एंड आर एंड एस एस. उसमें फिर से और दो मिलेंगे, आर आर आर, आर आर एस, आर एस आर, आर आर, आर एस आर, आर, ये सारे कॉम्बिनेशन. अभी देखना आर आर आर, एस एस एस, ये दोनों एनांशियोमर्स. क्लियर? सेम वे आर 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 और एस एस आर, ये दोनों एनांशियोमर्स, ये दोनों एनांशियोमर्स, ये दोनों एनांशियोमर्स. तो कितने एनांशियोमर्स, एनांशियोमरिक पेयर बन रहे हैं? 4. जे में बेटा इसके ऊपर नहीं पूछा है, 3 कायरल सेंटर के ऊपर इंफॉर्मेशन बेस नहीं पूछा अभी तक. कोई इतना तक अच्छे से करना आना चाहिए. सो टोटल नंबर ऑफ एनांशियोमरिक पेयर्स 4. टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे? 8C2, बिकॉज टोटल वी हैव 8 ऑफ देम एंड वी हैव टू अरेंज इट एज पेयर्स. क्लियर? So how many we will get? 28 pairs we will get on total, right?
एंड नंबर ऑफ डैश न्यूमेरिक पेयर्स कितने बनेंगे? नंबर ऑफ डैश न्यूमेरिक पेयर्स, टोटल पेयर्स मैंने एन न्यूमेरिक पेयर, मतलब 24 डैश न्यूमेरिक पेयर्स बनेंगे। नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कितने आएंगे? 4 आएंगे, क्योंकि 4 पेयर से इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकता हूँ, इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकता हूँ, इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एनैंटियोमर्स के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। सो देयरफॉर वी विल गेट ओनली 4 फ्रैक्शंस हियर, सो 4 पेयर्स मिलेंगे आपको। दैट क्लियर बेटा? नंबर ऑफ एनांशियम्स हमें लिस्ट बना के कंपेयर करना पड़ेगा। नंबर ऑफ एनांशियोमर पेयर्स वो लिस्ट बना के कंपेयर करना पड़ेगा कि कुछ फॉर्मूला है, एज इन 8 का हाफ और वैसा कुछ। नहीं, हर बार नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कोई सिमेट्री आ गया हो, करेक्ट। इसके लिए छोटे नंबर्स तक आप लोग ऐसे डाल के कर लोगे तो बेटर है। मैंने काफी स्टूडेंट से काफी ट्राई किया है, एंड ऑफ द डे फिर वो कंफ्यूज ही हो जाते हैं, ठीक है। तो यही समझा कि हार्डकोर वे ऑफ पुटिंग आउट द नंबर्स एंड मेकिंग आउट प्रॉपरली, चेकिंग आउट कितने पेयर्स है, दैट इज ओनली गिविंग अ बेटर एक्यूरेट आंसर्स। सो ये थोड़ा आदत डालो, और ये एक बार का है, मतलब एक बार आप ट्राई करोगे ना, बाद में एक रिदम बैठ जाएगा कि 8 है तो कैसे ड्रॉ करना है, और मतलब नॉट दैट यू हैव टू लिटरली डू दिस, मतलब एक आइडिया लग जाएगा कि 8 है तो मतलब आउट ऑफ देम ऐसे 8 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे तो 4 पेयर्स तो होंगे ही होंगे उसमें से, गॉट इट। और अगर कोई भी सिमेट्री नहीं है तो डेफिनेटली हमेशा हाफ नंबर ऑफ पेयर्स होंगे जो एनांशियोमर्स होंगे। अगर सिमेट्री है तो फिर कुछ चेंजेस हो सकते हैं, फिर ये लिख के चेक करना पड़ेगा आपको। ओके, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लिया मैंने ऐसे 3rd 4th 5th, बस इसके बाद सारे मैंने जेई क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। जेई क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और लास्ट में बचा है डीएल कॉन्फिगर। डीएल एकदम छोटा कॉन्सेप्ट है, आई डोंट, आपको डीएल पढ़ा है किसी का जो स्टीरियो खत्म हुआ है, आप बता सकते हो? सर नहीं हुआ स्टीरियो, स्टीरियो खत्म नहीं हुआ है, ओके। नहीं सर, ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। सो वी विल वेट फॉर दिस, बिकॉज ये अभी एज सच शायद वो डिपेंड करेगा आपके सिलेबस में आप पढ़ा रहे हो या नहीं पढ़ा रहे हो, क्योंकि ये फिर से बायोमोलिक्यूल्स में आता है, तो काफी सारे टीचर्स यूजुअली डायरेक्टली बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाते हैं। तो अगर आपके सर पढ़ा रहे तो मैं भी पढ़ा दूंगा इसको, ठीक है, वरना वी विल कीप इट अ हॉल्ट। सो इट्स ओनली द क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू डू। सर ने ये एग्जांपल दिया था ग्लूकोज का, कौन सा? ये एग्जांपल दिया था सर बट ने उसका ग्लूकोज कॉन्फ़िगरेशन का पढ़ाया कैसे। था, ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन अलग, मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड नहीं बस, कॉन्फ़िगरेशंस, ये सब। नहीं बस दो, उसका एक आइसोमर बताया जहाँ पे नहीं वो सर, इसका बस 6 साइक्लिक, goes to सर बस इसका साइक्लिक हाँ वाला आइसोमर दिया था, कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। मतलब वो डिस्कशन में नहीं लाए, मोस्टली ऑप्टिकल के बाद देखते हैं, इफ ही इज यूजिंग दैट देन वी विल आल्सो डिस्कस इट, अदरवाइज वी विल आल्सो कीप इट ए हॉल्ट फॉर इट, करेक्ट। लास्ट थिंग व्हाट वी हैव इज स्पेसिफिक रोटेशन, बस ये हमको करना पड़ेगा मैथमेटिकल फॉर्मूले से। इसको मैंने 4 क्वेश्चन की तरह बनाया, ये 1 2 3 4 क्वेश्चन है, लास्ट में अमाइन इन्वर्जन तो हमने किया है, और बस रिजोल्यूशन, राइट। So small part we'll be able to do that, and tautomers is what we will do in the next session, and we'll finish it up. Meanwhile मैंने assignment दिया है, सब लोग अभी complete करेंगे, क्योंकि now you have an idea how to work out with optical and geometrical isomers. Go through the notes, read it once, complete करो, और बाद में हम लोग एक complete session सिर्फ problem solving के लिए discussion के लिए रख लेंगे, okay. Samarth, I was sleeping, but I could not get up in the afternoon. हाँ सर, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग कल कर सकते हैं, कल आफ्टरनून या इवनिंग टाइम में। मैं अभी 2-3 दिन कल छुट्टी में वेडनेसडे है हूँ। ना? हाँ सर, कल इवनिंग में चलेगा। हाँ ठीक है, तो कल मैं सर मुझे भी इवनिंग में आ जाओ ना, इवनिंग में तेरा भी कंप्लीट कर दूंगा मैं, ना कल अच्छा इवनिंग में थोड़ा लेट, ओके, मे बी अराउंड 8 के बाद, चलेगा या ओके। कल मैसेज है सर वो आयनिक का भेज दो ना सर। आयनिक का ना बेटा, मेरा एक्चुअली आईपैड में ही रह गया था वो, मैं भी भेजता हूँ, ठीक है। हाँ सर, नो प्रॉब्लम। हाँ बेटा, ओके थैंक यू गाइस, सर। I'll end the session. Bye guys. ओके, बाय सर। Bye, sir. Okay, sir. Bye, sir.